پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریاب پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خاموش کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باؤلی تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ بھی دراصل ایک سرسبز ٹیلہ تھا جس کے نیچے کھدائی کر کے ایک سرنگ سی بنائی گئی تھی۔ زرمک کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہاں باؤلی کیوں بنائی گئی تھی۔ ٹیلے کے سامنے ایسے آثار موجود تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہاں سے ایک بڑی نہر گزرتی تھی۔ تقریباً 100 سال یا اس سے بھی پہلے یہ علاقہ کسی بڑے زمیندار یا جاگیردار کی ملکیت رہا ہوگا۔ نہر کے کنارے ٹیلے کے نیچے یہ باؤلی اس نے اپنے آرام کے لیے بنوائی ہوگی۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار اپنے اپنے علاقوں میں دریا یا نہر کے قریب اسی قسم کی باؤلیاں بنوایا کرتے تھے۔ دریا یا نہر کا پانی باؤلی کے قریب سے اس طرح گزارا جاتا کہ اندر داخل ہونے والی ہوا ٹھنڈی ہو کر آتی۔ یہ لوگ اپنی دوپہر انہی باؤلیوں میں گزارا کرتے تھے۔ بعض زمینداروں اور جاگیرداروں نے تو ان باؤلیوں میں عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس باؤلی کے اندر پانی کی گزرگاہ پختہ اینٹوں کی تھی اور اس کے ارد گرد کا فرش بھی، لیکن امتداد زمانہ سے اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھیں۔ پانی کی گزرگاہ کے دونوں طرف کشادہ جگہ تھی۔ کئی آدمی بیک وقت آرام کر سکتے تھے۔ بائیں طرف ایک اور چھوٹی سی سرنگ تھی جس میں دیوار پر تقریباً 5 فٹ اوپر اندر کی طرف ایک کارنر سی بنی ہوئی تھی۔ زرمک نے باؤلی میں داخل ہوتے ہی پنسل ٹارچ روشن کر لی اور اس کی روشنی باؤلی کا جائزہ لینے کے لیے کافی تھی۔ سامنے اس سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا۔ باؤلی کی چھت محرابی شکل میں تھی اور اگرچہ پختہ اینٹوں کی چنائی تھی، لیکن چھت اور دیواروں کی اینٹیں بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھیں۔ سرنگ کا آخری حصہ تھوڑا سا دب چکا تھا جس سے دوسری طرف کا راستہ تنگ ہو گیا تھا، لیکن تازہ ہوا کی آمد و رفت جاری تھی۔ باؤلی کے اندر کی ہوا باہر کی ہوا سے نسبتاً ٹھنڈی تھی۔ زرمک نے سوٹ کیس ایک جگہ رکھ دیا۔ دریاب نے بھی پوٹلی فرش پر پٹک دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خوشنما اور کندن بھی اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ زرمک ٹارچ کی روشنی میں آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایسی جگہوں پر زہریلے سانپ اور بچھوؤں کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ روشنی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا بغلی سرنگ میں کارنس کی طرف بڑھ گیا۔ فرش پر کچھ اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے چند اینٹیں نیچے اوپر کیں اور ان پر کھڑے ہو کر ٹارچ کی روشنی میں کارنس کا جائزہ لینے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اسے نیچے جھک جانا پڑا۔ 3-4 چمگادڑیں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی تھیں۔ چمگادڑیں اب پوری باؤلی میں اڑتی پھر رہی تھی، مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ چند سیکنڈ بعد زرمک دوبارہ اینٹوں پر چڑھ گیا۔ یہ کارنس اندر کی طرف کافی کشادہ تھی۔ تقریباً 4 فٹ آگے گہرا کھڈ تھا جس میں اترنے کے لیے اینٹوں کی 4 سیڑھیاں تھیں۔ اس کھڈ کی دیوار اور فرش بھی اینٹوں کا تھا۔ زرمک نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس باؤلی کے اندر یہ پختہ کھڈ کیوں بنایا گیا تھا۔ روشنی کی وجہ سے اس کارنس کے اندر چند چمگادڑیں اب بھی ادھر ادھر چکر لگا رہی تھیں۔ زرمک کارنس سے نیچے اتر آیا اور دریاب وغیرہ کے قریب آ کر روشنی میں ان کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ان تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر پرسکون نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا جانا اور پھر یہ بھاگ دوڑ، اور سب سے بڑھ کر ان انسان نما بھیڑیوں کا خوف جو موت کے فرشتوں کی طرح ان کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ اگر وہ لوگ اس طرف بھی آ گئے تو کیا ہوگا؟ دریاب نے زرمک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں دریاب بی بی، زرمک نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، دریاب نے کہا۔ بھیا، خوشنما نے کہا، بہت شدت کی پیاس لگی ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں۔
बर्दाश्त करो, जरमक ने जवाब दिया, इस जगह पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। खुशनुमा खामोश हो गई और वह जरियाब के करीब बैठी हुई थी। जरियाब ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। कुंदन भी दीवार से टेक लगाए बैठी लंबे लंबे सांस ले रही थी। जरमक ने टार्च बुझा दी और वो कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर बाउली के दहाने पर आ गया। वो गांव की तरफ देख रहा था। बीच में बुलंद टहला और दरख्तों के झुंड हायल होने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जरमक एक जगह टेक लगाकर बैठ गया और इस सूरत हाल के बारे में सोचने लगा, जो हकीकतन बहुत संगीन थी। खामस मौत के फरिश्ते की तरह उनके पीछे लगा हुआ था। उन्हें वहां आए हुए चंद ही घंटे हुए थे कि वह अपने खौनख्वार साथियों को लेकर वहां पहुंच गया था। लेकिन एक बात जरमक को हैरत जरूर थी कि खामस को यहाँ उनकी मौजूदगी का पता कैसे चला था, और उसके ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। जब वो नामेदार के पास पहुंचे थे तो उस वक्त खेतों में 2-3 आदमी भी काम कर रहे थे। नामेदार राजदारी के ख्याल से उन्हें गांव ले जाने की बजाय उस मकान में ले आया था। अपने उन आदमियों को उसने सख्ती से मना कर दिया था कि गांव में किसी को उनके बारे में ना बताया जाए। फिर वह दोपहर और रात का खाना अपने घर से बनवा कर लाया था। मुमकिन है कि बस्ती के किसी आदमी को उनके बारे में पता चल गया हो कि वो कौन हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खामस को किस तरह इतला दी गई होगी, जबकि खामस वहां से मीलों दूर था। खामस तो अपनी जान बचाकर भागा था और उसकी लैंड क्रूजर ये लोग ले आए थे। दफतन जरमक के जहन में एक ख्याल और उभरा। लैंड क्रूजर उन्होंने नहर में फेंक दी थी। हो सकता है कि वो पूरी तरह पानी में ना डूबी हो और किसी किसान ने उस तरफ से गुजरते हुए देख लिया हो और कुतुबाबाद के थाने को इतला कर दी हो, और इस तरह लैंड क्रूजर के बारे में इतला रखेल शाह तक पहुंच गई हो। इस दौरान खामस भी किसी न किसी तरह दरवेशपुर पहुंच चुका होगा और उन लोगों को अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई होगी कि ये लोग किसी करीबी बस्ती में मौजूद हैं। हो सकता है कि रखेल शाह या खामस वगैरह ये भी जानते हों कि आदमपुर में उनका कोई ऐसा हमदर्द मौजूद है जो उन्हें पनाह दे सकता है। यकीनन यही बात होगी, इसीलिए खामस इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया था। रात की तारीकी छटने लगी, अंधेरा रुखसत हो रहा था। दिन का बहुत मध्यम उजाला ज़ाहिर होने लगा। जरमक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसने एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली और इधर उधर देखने लगा। दरख्तों के झुंड वाले टेले की तरफ देखते हुए वो उछल पड़ा और बड़ी फुर्ती से झाड़ियों की आड़ में हो गया। वो 4 घुड़सवार थे। जरमक को उनमें एक घुड़सवार पहचानने में दुश्वारी पेश नहीं आई, वो खामस था। जरमक बाउली के अंदर की तरफ दौड़ा। कुंदन, जरियाब और खुशनुमा एक दूसरे से लिपटी ऊँग रही थी और जरमक ने खुशनुमा का बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। खुशनुमा के साथ जरियाब और कुंदन भी जाग गईं। वो लोग आ गए, जरमक बोला, और बाउली से निकलकर भागना बेकार है। छुपने की एक ही जगह है, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। उसने झुककर सूटकेस और पोटली उठा ली। वो दौड़ते हुए उस कार्नस के करीब पहुंच गए। जरमक ने पहले उन तीनों को सहारा देकर बारी बारी ऊपर चढ़ाया और फिर नीचे पड़ी हुई ईंटें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा, ताकि एक जगह ईंटें जमा देखकर किसी को किस्म का शुबा ना हो सके। बाउली के दहाने की तरफ से घोड़े के हनकनाने की आवाज़ सुनकर जरमक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने जल्दी से कार्नस की ककर पकड़ ली और अपना जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। वो लोग बाउली में छुपे होंगे, अंदर जाकर तलाश करो और उन्हें बचकर नहीं जाना चाहिए। ये बारीक चीखती हुई आवाज़ खामस की थी। जरमक का जिस्म पसीने में तर होने लगा। उसकी हथेलियां भी पसीने में तर हो रही थी। कार्नस की ककड़ पर उसका हाथ फिसल रहा था और उससे पहले कि उसकी गिरफ्त छूट जाती, ऊपर जरियाब और खुशनुमा ने उसे पकड़ लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचने लगी। उसी लम्हा बालू में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें फैलती गईं। बंजान जागीरदार का बहुत पुराना मुलाजम था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसने बचपन से लेकर 55 बरस की उम्र तक ज़िंदगी उसी हवेली में गुजारी थी। वो जागीरदार का नमकवार था, वफादार था। जब हालात ने पलटा खाया तो वो भी रखेल शाह के जाल में फंस गया। रखेल शाह ने जब हवेली में कब्जा किया तो बंजान उन दिनों हवेली में ही था, लेकिन चंद रोज बाद रखेल शाह उसे दरवेशपुर ले आया और वो यहाँ खिदमात अंजाम देने लगा। कई महीनों तक बंजान ये समझता रहा कि जागीरदार निमरान ने
पुराने इख्तलाफात भुलाकर रखेल शाह को दोबारा जागीर का मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। लेकिन फिर ये इंकशाफ उसके लिए बहुत ही तकलीफदा साबित हुआ कि रखेल शाह ने जागीरदार को कैदी बना रखा है और वो एक साजिश के तहत उसकी जागीर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। उस रोज इत्तफाक से बंजान ने रखेल शाह और गोपांग की बातें सुन ली थी और तब उस पर यह सनसीखेज इंकशाफ हुआ था कि जागीरदार को कैदी बनाकर हवेली में रखा गया है। रखेल शाह उसे कत्ल करना चाहता है, लेकिन इससे पहले वह जागीर से मुतल्लक तमाम कागजात मुकम्मल करके उन पर जागीरदार के दस्तखत करवाना चाहता है। हवेली की निगरानी खामस के सुपुर्द थी और खामस को बंजान बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके ख्याल में तो वो इंसानों के ज़मरे में ही नहीं आता था और उसका तल्लुक किसी और ही मखलूक से था जिसमें जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ रखेल शाह का हुक्म मानना जानता था। बंजान को जब जागीरदार के खिलाफ इस साजिश का इल्म हुआ तो रगों में उसका खून खोल कर रह गया था। वो जागीरदार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन बहुत मामूली सा आदमी था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि रखेल शाह जैसे लोगों का मुकाबला कर सकता। वो इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि 10 साल पहले जागीरदार की इकलौती बेटी कुंदन की मौत का जिम्मेदार भी रखेल शाह ही था और यही रखेल शाह जागीर पर कब्जा करने के लिए अब निमरान को मौत के घाट उतारने का मंसूबा बना रहा था। बंजान के दिल में एक मर्तबा ख्याल आया था कि वो किसी पुलिस अफीसर से मिलकर उसे रखेल शाह की साजिश से आगाह कर दे, लेकिन फिर ये सोचकर उसने ऐसा नहीं किया कि दरवेशपुर के बहुत से पुलिस अफीसर रखेल शाह के वजीफा ख्वार थे। उसने कई पुलिस अफसरों को रखेल शाह के दफ्तर आते देखा था। वो रखेल शाह के सामने इस तरह हाथ बांध बांध कर खड़े होते जैसे वो कानून के मुहाफ़िज़ और सरकारी मुलाजम नहीं, उसके ज़र खलीद मुलाजम हों। बंजाम ने पुलिस और बाज़ देकर बड़े अफसरों को रखेल शाह के बंगले पर भी आते देखा था। रखेल शाह उन लोगों का वक्तन फ़ौक्तन दावतें करता रहता था और उन दावतों में अफसरों की अय्याशी का पूरा ख्याल रखा जाता। बंगले में उनकी शब बसरी के लिए खूबसूरत लड़कियों का बंदोबस्त भी किया जाता। ये सब कुछ देखते हुए बंजान को यकीन था कि ये पुलिस अफीसर रखेल शाह के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि उल्टा उसी को पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बंजान चैन से बैठने वाला नहीं था। उसने जागीरदार के 1-2 वफादारों से बात की, मगर वो भी टाल गए। बल्कि उन्होंने बंजान को मशवरा दिया था कि इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखे, क्योंकि अगर रखेल शाह को उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंजान खून के घूंट पीकर रह गया था और वफा की आजमाइश का वक़्त आ रहा था, तो सब ने ज़ुबान बंद कर ली थी। वो बुज़दिल थे, डरते थे कि रखेल शाह के आताब का निशाना न बन जाए, मगर बंजान बुज़दिल नहीं था और उसे अपने अंजाम की परवाह नहीं थी। वो जागीरदार की मदद के मंसूबे बनाता रहा, लेकिन ढंग की कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बिल आकर उसने एक फ़ैसला कर ही लिया कि वह दरवेशपुर के सबसे बड़े पुलिस अफीसर के नाम गुमनाम खत में सारी तफसील लिख दी और उसे यकीन था कि यह आला पुलिस अफीसर कुछ फ़र्ज शनासी और दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए इस मामले की तहकीक करेगा। लेकिन उसे यह जानकर बेहद दुख हुआ कि तीसरे ही रोज़ शहर का वो आला तरीन पुलिस अफीसर रखेल शाह के दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था और उसी गुमनाम खत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। बंजान ने उनकी कुछ बातें सुनी थी और जिससे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि उस गुमनाम खत में रखेल शाह पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को किसी का ज़हनी फतूर समझा गया था। रखेल शाह ने उस पुलिस अफीसर को पूरी तरह मुतमिन करके रुखसत कर दिया था। पुलिस अफीसर के जाने के बाद बंजान ने छुप कर रखेल शाह और गोपांग की बातें भी सुनी थी। रखेल शाह बड़ा बरहम था और उसके लिए परेशानी की बात यह थी कि जागीरदार के हवाले से ये बात शहर के आला तरीन पुलिस अफीसर तक पहुंच गई थी। वो पुलिस अफीसर अगरचे मुतमिन होकर वापस चला गया था, लेकिन रखेल शाह के ख्यालात में बात आगे बढ़ सकती थी। इस सूरत हाल से खतरा महसूस करते हुए उसने गोपांग को यह हुक्म दिया था कि उस काली भेड़ का पता चलाया जाए जिसने पुलिस अफीसर के नाम वो गुमनाम खत लिखा था। बंजान को बर वक़्त इन बातों का पता चल गया था, इसलिए वो मोहतात हो गया। दफ्तर के एक आदमी को चेक किया गया, बंजान को भी आजमाया गया। दफ्तर ही के एक आदमी ने बंजान से उसके घर पर बड़ी राजदारी से मुलाकात करके एक बड़ी रकम का लालच देकर इस बात पर आमादा करने की कोशिश की थी
کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے تو وہ دونوں مل کر رکھیل شاہ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن بنجان کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا اور کہ اس چال میں آ جاتا۔ اس نے اپنے آپ کو رکھیل شاہ کا وفادار ظاہر کرتے ہوئے الٹا اس شخص کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو رکھیل شاہ سے اس کی شکایت کر دے گا، اور اس طرح وہ اس انجان شبے کی زد سے باہر نکل گیا تھا، لیکن اس نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ گوپانگ اس شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا جس نے پولیس افسر اعلیٰ کو گمنام خط لکھا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد فیروز آباد میں بنجان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر فیروز آباد چلا گیا اور پھر ایک روز اتفاق سے زرمک سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس روز بنجان اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ بازار کے ایک چھوٹے سے چائے خانے سے چائے پی کر نکل رہا تھا کہ دروازے پر ایک خوب رو نوجوان سے مدبیر ہو گئی۔ بنجان کو تانبے جیسی رنگت والے اس نوجوان کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوجوان کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بھی بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا اور پھر دفتن اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری اور وہ بنجان بابا کہتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ مجھے نہیں پہچانا بنجان بابا، غور سے دیکھو میں کون ہوں۔ نوجوان اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ جانے پہچانے تو لگ رہے ہو لیکن یاد نہیں آ رہا، بنجان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تمہیں تمریز تو یاد ہے نا بنجان بابا، تمہارا دوست تمریز، نوجوان نے کہا۔ اوہو تیرا بھلا ہو، تم تبریز کے بیٹے ہو نا زرمک، بنجان نے کہا اور اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی تھی۔ ہاں بنجان بابا میں زرمک ہوں، زرمک نے جواب دیا۔ بنجان چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا اور پھر بڑے پرجوش انداز میں اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا، اور جب وہ زرمک سے الگ ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہاں تھے بیٹے تم، کہاں غائب رہے اتنا عرصہ، 10 سال بعد تمہیں دیکھا ہے، بنجان نے کہا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد خود ہی بولا۔ اچھا ہوا کہ تم کہیں چلے گئے تھے، ورنہ وہ ظالم تمہارے باپ کی طرح تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے بنجان بابا، لیکن میں ایک طویل عرصہ کہاں غائب رہا، یہ ایک طویل داستان ہے، اطمینان سے سناؤں گا، لیکن یہ زرمک نے خاموش ہو کر بنجان کے ساتھ دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ یہ میرا دوست ہے، بنجان نے کہا اور پھر اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جاؤ علی بخش، میں شام کو کسی وقت تم سے ملوں گا، میرا بیٹا مجھے مل گیا ہے، بہت عرصے بعد ملا ہے اور اس سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ علی بخش ان دونوں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ بنجان زرمک کو لے کر دوبارہ ریسٹورانٹ میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن زرمک نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ یہاں نہیں بنجان بابا، میرے ساتھ آؤ، ہم پرسکون جگہ پر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ زرمک بنجان کو بودی شاہ کے گھر لے گیا اور بودی شاہ بھی بنجان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ تینوں دیر تک بیٹھے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے رہے، اور جب بودی شاہ اٹھ کر چلا گیا تو بنجان نے مطلب کی بات شروع کر دی۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے زرمک، اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے تم جیسے جوان اور دلیر آدمی کی ضرورت تھی۔ رکھیل شاہ نے جاگیردار کو قیدی بنا رکھا ہے، وہ جاگیر پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے اور بعض اعلیٰ سرکاری افیسر بھی اس کی اس سازش میں شریک ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل کرتا رہتا ہے میں اکیلا بھلا کیا کر سکتا ہوں ان کے خلاف، اور اب تم آ گئے ہو، مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے۔ رکھیل شاہ کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، زرمک نے کہا۔ میں ہی نہیں، جاگیر کی اصل وارث بھی واپس آ گئی ہے۔ اصل وارث؟ میں سمجھا نہیں۔ بنجان نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بنجان بابا، جاگیر کی اصل وارث کندن، وہ زندہ ہے، اور زرمک نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اور بنجان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں بنجان بابا، زرمک نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے اپنے اور کندن کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ اس طویل عرصہ کے دوران میں نے کندن کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کی ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے اسے امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ نہیں دیا، لیکن اسے کبھی کسی کمی یا محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تقریباً 2 ہفتہ پہلے میں اسے اور خوشنما کو لے کر یہاں آیا تھا۔ ہمیں تو یہ پتہ چل گیا کہ جاگیردار بیمار ہے اور کسی کو اسے ملنے نہیں دیا جاتا۔ حویلی میں رکھیل شاہ کی موجودگی کا سن کر ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اور میں نے اپنے طور پر تفتیش کی تو میرا شبہ درست نکلا۔ رکھیل شاہ نے جاگیردار کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ کندن باپ سے ملنے کو بے چین تھی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اسے حویلی سے دور رکھا۔ ہمیں کچھ ہمدرد مل گئے تھے جو اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ مشورہ بھی دیا
कि हमें इस तरह खुलकर सामने नहीं आना चाहिए। हुर्मत हमें अपनी बस्ती ले गया और बस्ती के करीब भी पुराने खंडर हैं। उसे उन खंडरों के नीचे तय खाने का रास्ता मालूम था और उस खंडर के तय खाने में हमारे लिए सारी सहूलतें मुहैया कर दी गईं और हमने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी। जरमक चंद लम्हे को खामोश हुआ और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताता चला गया। अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और बंजान ने उसके खामोश होने पर कहा, मैं रखेल शाह के दफ्तर में हूँ और उसे अभी तक मुझ पर शुबा नहीं हो सका और मैं उसकी सरगर्मियों के बारे में तुम लोगों को आगाह करता रहूँगा। एक रोज़ बंजान ने जरमक के साथ जाकर कुंदन से भी मुलाकात की थी और उसे अपनी वफा का यकीन दिलाया था। उसने जरमक को आदमपुर में मुकीम फूफीजाद बहन और उसके शोहरे नामदार के बारे में भी बता दिया था कि वो किसी मुश्किल के वक़्त उसके यहाँ भी आ जा सकते हैं। बंजान ने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया था। इस दौरान वो जरमक और कुंदन को अहम इतलात फराहम करता रहा और फिर उसने ये इतला भी दी थी कि हवेली से दरियाब के फरार और रातों को हवेली में बाज़ नामालूम लोगों की पुरइसरार सरगर्मियों की वजह से जागीरदार को हवेली से निकालकर दरवेशपुर पहुंचा दिया गया है और खामस पुलिस की एक जमात लेकर दोबारा हवेली गया है। हवेली में उन पुरइसरार सरगर्मियों के सिलसिले में दरियाब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन दरियाब उनके हाथ नहीं आई थी और फिर उसे अगले रोज़ फैरुजाबाद से बंजान को जरमक का पैगाम मिला कि वो कल दरवेशपुर आ रहे हैं। बंजान ने कच्ची आबादी में उनके रहने का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन वो लोग दरवेशपुर नहीं पहुंचे, बल्कि रात को उसे पता चला कि खामस ने दरियाब, कुंदन और जरमक को एक बस में सफ़र करते हुए पकड़ने की कोशिश की थी, मगर खामस को खुद अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और उसके दोनों साथियों को बस के मुसाफिरों ने डकैती और राहज़नी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर दिया था। बंजान खामस की इस शिकस्त पर बहुत खुश था। दरियाब के हाथों खामस को पे दर पे शिकस्त उठाना पड़ी थी और अब तो कुंदन और जरमक भी उसके साथ थे। जरमक वगैरह दरवेशपुर नहीं पहुंचे थे। वो परेशान था कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। शाम के वक़्त उसे आदमपुर से नामदार का एक आदमी मिलने आ गया और उससे मिलने वाला पैगाम बंजान के लिए इत्मीनान बख्श था। जरमक वगैरह नामीदार के पास पहुंच गए थे और नामीदार ने पैगाम भेजा था कि वह अपनी जान दे देगा मगर अपने मेहमानों पर आंच नहीं आने देगा। उसने ये भी पैगाम भेजा था कि 1-2 दिन में हालात साजगार होने पर वो खुद मेहमानों को लेकर दरवेशपुर आएगा। उस रात बंजान बहुत खुश था। रखेल शाह ने जागीरदार निमरान को अभी दरवेशपुर में ही रखा हुआ था और वो उसे जरगून भेजना चाहता था, मगर उस गड़बड़ की वजह से उसका ये प्रोग्राम भी मुतासर हुआ था। हो सकता है कि वह जागीरदार को 1-2 दिन के लिए दरवेशपुर में ही रखे। बंजान को अगरचा मालूम नहीं था कि जागीरदार को कहाँ रखा गया है, मगर ये मालूम कर लेना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। वो खुश इसलिए भी था कि दरियाब, कुंदन, खुशनुमा और जरमक के आने के बाद वो अपनी सरगर्मियाँ तेज़ करेंगे और जागीरदार को उनके शिकंजे से बाज़याब करा लेंगे। बंजान बहुत खुश था कि जागीरदार निमरान के मुश्किल दिन अब ख़त्म होने वाले थे। बस चंद रोज़ की बात और थी। रखेल शाह और उसके गुर्गे अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे और जागीर के लोगों को उनके जुल्म सितम से निजात मिल जाएगी। बंजान यही सब कुछ सोचता हुआ नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का न जाने कौन सा पहर था कि धड़धड़ाहट की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। कोई बड़े ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। बंजान आंख खुलने के बाद चंद लम्हे तो ये सोचता रहा कि कौन हो सकता है और फिर दफतन उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। ये कुंदन और जरमक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो आंखें मलता हुआ कमरे से निकलकर सेहन में तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे के करीब आ गया और कुंडा हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बंजान को यूं लगा जैसे उसकी खोपड़ी में राकट आ लगा हो और उसके मुंह से चीख निकल गई। आंखों के सामने नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगीं और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। बंजान ने जल्दी ही आवाज़ पर काबू पा लिया और फिर अपने सामने देव कामत खामस को देखकर उसकी रूह फना हो गई। उसे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। चोट लगने से उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे और वो दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर उठने की कोशिश करने लगा। खामस ने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर मारी। बंजान चीख कर पीछे उलट गया और खामस ने पे दर पे 3-4 और ठोकरें रसीद की। बंजान बुरी तरह बिलबिला रहा था। उठो कुत्ते के पिल्ले, और खामस उसे एक और ठोकर मारते हुए चीखा। हकीकत यह थी कि उसकी अपनी आवाज़ कुत्ते के पिल्ले जैसी थी। बंजान उठकर खड़ा हो गया और वह अपने जिस्म के उन हिस्सों को सहला रहा था जहां ठोकरें पड़ी थीं। वो खौफजदा सी नज़रों से इधर उधर देख रहा था
और खामस के 3 आदमी, और उनमें से एक के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी, दूसरे के हाथ में पिस्तौल और तीसरे के पास खंजर था, जिसे उसने इस अंदाज में पकड़ रखा था कि जैसे किसी भी लम्हा हमला कर देगा। कका क्या बात है? और बंजान खामस की तरफ देखकर हकलाया, क्या है ये? और मैं रखेल शाह से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जरूर करना शिकायत, बशर्ते कि तुम जिंदा बच गए, खामस ने कहा, और तुम्हें मारने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि दरियाब और उसके साथी कहाँ है। मुझे क्या मालूम? और बंजान का दिल उछलकर हल्क में आ गया और उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसका राज खुल गया था। और मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, मेरा उनसे क्या तल्लक हो सकता है। आदमपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है, क्या नाम है उसका? खामस ने पूछा। नामदार, वो मेरा बहनोई है, बंजान ने जवाब दिया, लेकिन उसका जरियाब वाले मामले से क्या तल्लक? आज सुबह जरियाब और उसके साथी मेरी लैंड क्रूजर छीन कर फरार हो गए थे, और वो लैंड क्रूजर माची नहर में डूबी हुई मिली है। उसे धक्का देकर नहर में गिराया गया था, और जिसका मतलब है कि वह जरियाब और उसके साथी आदमपुर ही गए होंगे, वहां नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार के पास ही पनाह मिल सकती है। हातम ने बताया था कि आज आदमपुर का कोई आदमी भी तुमसे मिलने आया था। क्या पैगाम लेकर आया था वो? और खामस ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता, बंजान ने जवाब दिया। तुम सब कुछ जानते हो और तुमसे मैं सब कुछ पूछ लूंगा, खामस ने कहा। हाँ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं पूछ सकोगे। मैं अपने आका का वफादार हूँ, मैं जागीरदार का मैंने नमक खाया है, हक के नमक अदा करना जानता हूँ। रखेल और तुम लोगों की तरह नमक हराम नहीं हूँ, बंजान ने ठोस लहजे में जवाब दिया, और वो एकदम तन कर खड़ा हो गया था। बंजान कमरे में उल्टे कदमों पीछे पलट रहा था। खामस खंजर हाथ में संभाले उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई दरिंदा हमला आवर होने से पहले अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। बंजान उल्टे कदमों चलता हुआ चारपाई से टकरा गया और उसने संभलने की कोशिश की, मगर पुश्त के पल चारपाई पर गिरा, और इससे पहले कि वह संभलने की कोशिश करता, खामस का खंजर उसके सीने में प्यूसत हो चुका था। खामस के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। वो पे दर पे खंजर के वार कर रहा था। बंजान के सीने पर जा बजा खून के फवारे उबल रहे थे। खामस ने आखिरी वार करके खंजर उसके सीने से निकाला और उसकी धार बंजान के गले पर फेर दी। खामस उठकर सीधा हो गया और उसके चेहरे पर एक तमानियत के आसार नमूदार हो रहे थे। बंजान के खून ने उसकी प्यास किसी हद तक बुझा दी थी। उसने खंजर का ब्लेड बंजान के लिबास से साफ किया और कमरे से बाहर आ गया। उसके 2 साथी सेन में थे और तीसरा राइफल संभाले बैरूनी दरवाजे में खड़ा था। बंजान की चीखें सुनकर बस्ती के कुछ लोग गली में जमा हो गए थे। मकान से बाहर निकलते हुए खामस ने राइफल का एक ब्रस्ट मारा, हवा में मारा, और गली में जमा लोग तत्तर बित्तर हो गए। खामस और उसके साथी कच्ची बस्ती की गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए जहां गाड़ी खड़ी थी। वो लोग गाड़ी में बैठकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए एक हवेली नुमा मकान में आ गए। यहाँ उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और अस्तबल से घोड़े निकाल लिए। ये रखेल शाह का मकान था जो सिर्फ उसके घोड़ों के लिए मखसूस था। घोड़ों की देखभाल के लिए वहाँ 3 मुलाजम भी मौजूद थे। दरवेशपुर में घोड़े रखना एक फैशन समझा जाता था। हर दौलतमंद शख्स के पास 2-3 घोड़े मौजूद थे और बाद लोगों के पास तो रखेल शाह की तरह कई घोड़े थे। शहर से निकलते ही उन्होंने घोड़े सरपिट दौड़ा दिए। माची नहर के पुल पर पहुंचकर वो कुछ देर को रुके और फिर घोड़ों को उस रास्ते पर डाल दिया जो आदमपुर की तरफ चला गया था। जब वो बस्ती में पहुंचे तो रात का आखिरी पहर था। बस्ती के लोग गहरी नींद में थे, लेकिन कुत्ते जाग रहे थे और उन्होंने भौंककर खामस और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। कुत्तों के मुसलसल भौंकने की आवाज़ों से एक किसान अपने मकान से बाहर निकल आया और उसके हाथ में लाठी थी। उसने घोड़सवारों को देखकर दोबारा मकान में घुसने की कोशिश की, मगर खामस के एक साथी ने घोड़े से कूदकर उसे पकड़ लिया और उस किसान से नामदार के मकान का पता मालूम करने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। खामस जब आदमियों को लेकर वहां पहुंचा तो इस इंकिशाफ ने उसका पारा चढ़ा दिया कि नामदार घर से भाग गया है। खामस गुस्से में पागल हो गया और उसने नामदार के जवान बेटे की पिटाई शुरू कर दी। घर की औरतें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खामस उनसे जरियाब और उसके साथियों के बारे में पूछ रहा था, मगर हकीकत ये थी कि नामदार ने अपने घर वालों को जरियाब वगैरह के बारे में कतई ला इल्म रखा था। वो खामस के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके थे
शोर की आवाज़ सुनकर बस्ती के लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां और बंदूकें लेकर घरों से निकल आए। वो यही समझे कि डाकुओं ने हमला कर दिया है, लेकिन हमला आवर होने वाले डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक थे। खामोश और उसके साथी खून के प्यासे थे। राइफल के एक बरस से 3 देहाती ढेर हो गए। खामोश का एक साथी लोगों को दूर रखने के लिए हवाई फायरिंग करता रहा। मायूसी ने खामोश का दिमाग ही पलट दिया था और उसने नामदार के मकान को आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई और 2-3 और मकान भी आग की लपेट में आ गए। आग के शोलों के साथ बस्ती के लोगों की चीखें भी आसमान तक पहुंच रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक यह शैतानी खेल जारी रहा और फिर दफतन एक आदमी किसी तरफ से दौड़ता हुआ सामने आ गया। वो नामदार था।